Hi guys, this is Pooja, and today I will be telling you about my migration journey from DU SOL to DU regular college. And this video is gonna be very in-depth knowledge about migration and also the reality checks I faced during my migration process. Let's begin. POV, this picture is from my college time when I was getting ready for the very first time to enter my college. This was the very first look I maintained and went for the college classes. Okay. Guys, if you're new to this process, that if you have not listened about it and all things, it's okay. I will be telling you everything. Migration process is very like hectic process. It is very demanding that you pay attention to minute details as well. Then your process is also depending upon that the efforts you are putting in your migration process. If you don't put any efforts, then you will be not getting your migration done. And if you will be not meeting the time period of the migration process date, ending date, deadline, then you won't be able to get migration. My migration started when I gave my second semester exams, and जैसे ही I gave my second semester exams, I went for like different colleges, random colleges, just taking my like printed mark sheet of very first semester only. Not even I was getting, because result was not declared of the second semester because just exam ही दिए थे. But मैं first semester की सिर्फ mark sheet लेके इधर उधर college जा रही थी. मैंने अपने घर से जो सबसे पहले जो पास कॉलेजेस थे, तो मैंने वहां पर टारगेट करा, जैसे कि मेरे घर के पास एक तो मतलब मेनली तीन कॉलेजेस है कालका जी में. तो कालका जी में जैसे कि आप कह सकते हो कौन कौन से कॉलेजेस थे, मैं खुद भी भूल गई हूँ. बट मतलब जॉन से भी कॉलेजेस है, अच्छे कॉलेजेस है. हाँ, देश बंधु कॉलेज जैसे, और मतलब ये रामानुजन कॉलेज, ये सब कालका जी और गोविंदपुरी के आसपास है. तो आई लिव नियर दैट एरिया, तो आई जस्ट टारगेटेड दैट colleges first. And it was a very, 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 very irritating process to deal with these kind of people who don't even know that it is possible to get migrated from due SUL to due regular, because everyone thinks that it's just regular to regular. But in like due SUL PDF, there is an option which is written as well, that if a person wants to migrate, he can or she can migrate from due as well to due regular. So if I will be able to get the link of that PDF, I will upload it, or I will just share with you, and I will also write the page number as well. Then the second thing if we talk about is कि अगर आपको जैसे मतलब बात करनी, तो आप किससे बात करोगे कॉलेज में जाके. तो जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम, आई वाज आल्सो अ वेरी शाय पर्सन, बिकॉज मतलब ऐसा कभी काम मैंने कभी कुछ करा नहीं था. और ये पता है, अगर ये प्रोसेस आपको करना है, तो आप अगर आपके पास अप्रोच है, देन यू कैन गो फॉर इट, लाइक आप उसी पे डिपेंड हो सकते हैं, अप्रोच वाले बंदे पे. बट अगर आपके पास बिल्कुल भी अप्रोच नहीं है, जो आप बिल्कुल न्यू हो, आप किसी को नहीं जानते, और तब मेरी तरह ही, तो आपको खुद से ही ये काम करना होगा. इफ यू विल बी गिविंग समवन एल्स दिस ड्यूटी, देन योर माइग्रेशन वोंट बी एबल टू लाइक गेट पास्ट, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. तो आपको क्या करना होगा, जैसे मतलब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज में गई थी किसी कॉलेज में, तो किसी कॉलेज का मतलब कि मैं सबसे फर्स्ट कॉलेज अगर मैं अपना बताऊँ, तो मैं गई थी रामानुजन में. एंड आई वाज ड्राइविंग माई सेल्फ, क्योंकि मेरे को कार चलाने आती है, तो मतलब मैं वहां पर जा रही थी. और वहां पर कॉलेज के बाहर ही कार लगा दी थी, एंट्री नहीं मिलती अंदर. बाकी आप मेट्रो से भी जा सकते हो, अपना सर्च कर सकते हो कि कहाँ कहाँ कॉलेजेस है अपने कोर्स के अकॉर्डिंग. जैसे मेरा बीकॉम ऑनर्स था, तो मेरे को पता था कि बीकॉम ऑनर्स के कौन कौन से कॉलेजेस है और किस किस कॉलेजेस को मैं टारगेट कर सकती हूँ, ताकि मेरे चांसेस थोड़े ज्यादा हुए माइग्रेशन में. क्योंकि मेरा मेन फोकस था कि सिर्फ मेरे को रेगुलर कॉलेज चाहिए, चाहे वो साउथ कैंपस का मिले, ऑफ कैंपस का मिले, कि नॉर्थ कैंपस का मिले.
आई डिडंट केयर दैट मच। बस मेरे को ये था कि जो ऑफ कैंपस के जो 2-3 कॉलेजेस है जहाँ पर मेरे को नहीं जाना था या मतलब मेरे को इतना स्कोप नहीं नज़र आ रहा था कि अब मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर थे, एक्सेट्रा रीज़न्स, उस वजह से मैंने उन कॉलेजेस को छोड़ा था। बाकी जो भी कॉलेजेस मैंने देखे थे मतलब सारे कॉलेजेस अच्छे ही हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि बुरा है, बस 2-3 मतलब चीज़ों को छोड़ के बस, 2-3 कॉलेजेस को छोड़ के। So if we talk about, I went to Ramanujan College and there I was entered and गार्ड वाले से अगर आप बात नहीं, आप जैसे मेरी तरह के शाई हो गए, तो अगर आप उनसे बात नहीं करोगे तो आपको बात आपको सिंपल सिंपल यही कहना है कि आपको जैसे माइग्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करनी है। अब वो आपको कहेगी कि नहीं नहीं माइग्रेशन प्रोसेस का अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कई कॉलेजेस में ऐसा कह सकता है, बट अगर आपको जैसे पता है कि आपको एटलीस्ट बात छेड़नी है माइग्रेशन प्रोसेस की, जैसे ही आपने सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम दे दिए, तो तो आपको मतलब अंदर एंट्री करनी ही पड़ेगी। तो आपको उनको सिर्फ यही माइग्रेशन प्रोसेस का बोलना है और वो मोस्टली आपको भेज ही देंगे। अगर जैसे वो चल रहा है प्रोसेस ऑलरेडी, वो मतलब चल रहा होता है माइग्रेशन प्रोसेस, तो अगर आपको बात करनी है तो आप बात ऐसे बोल के और अपनी जो भी वहाँ पर रजिस्टर में एंट्री करके कि नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर ये सब करके आप अंदर जाके, अब अंदर कहाँ जाए? अंदर भी हमें कुछ नहीं पता कि हमको कहाँ जाना है, बिकॉज़ रामानुजन में जब मैं गई तो वहाँ पर अंदर एक तरह से कोई था ही नहीं कि कोई मेरे को गाइड कर सके। तो आई वाज़ ब्लैंक्ड, मैं इधर-उधर देख रही हूँ, नो ऑफिस, नो रिसेप्शन, नथिंग। तो तो मेरे को जैसे क्या हुआ, साइड पे जैसे कोई भी बैठे होंगे, चाहे वो सर थे, कोई फैकल्टी मेंबर था कि या कोई स्टाफ मेंबर था, आई डोंट नो। बट मैंने उनसे पूछा कि ऐसा-ऐसा करना है, तो फिर उन्होंने बताया कि आप इस फ्लोर पे जाके इन सर को कॉन्टैक्ट करो। तो मतलब आप उनसे सिर्फ बात करो। तो मैंने जब उनसे बात करी, देन ही आस्क्ड अबाउट माय सेमेस्टर लाइक अ, सीजीपीए या यू कैन से एसजीपीए। तो उसमें क्या होता है, एसजीपीए मतलब एक तो सीजीपीए, एसजीपीए वही होता है कि आपका पूरा सेमेस्टर का कैलकुलेट करके आपको बता दिया जाता है कि हाँ, आपका इतना टोटल बन रहा है। और ये भी है माइग्रेशन प्रोसेस में कि अगर आपकी कोई बैक आ रखी है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप बिल्कुल पास नहीं कर पाओगे, अपना माइग्रेशन सक्सेसफुल नहीं कर पाओगे। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट, चाहे आप कितने भी गंदे मार्क्स से पास हो जाओ, 1-2 सब्जेक्ट में, बट पास हो ही जाओ। अगर पास नहीं होगे तो आपका माइग्रेशन प्रोसेस कैंसल हो जाएगा। तो इतनी प्रिपरेशन तो करके ही जाना है एग्ज़ाम में। आई नो पढ़ाता नहीं है कोई भी डीओएसओएल में, बट आप फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके जाना। देन उसके बाद फिर क्या हुआ, आई वेंट फॉर लाइक देयर। तो उनको वहाँ पर मैंने सर से कॉन्टैक्ट करा, तो सर मेरे को बोलते हैं कि बेटा हमारा तो लाइक ऐसा अभी सीट्स है नहीं, बट अगर होगी तो मैं आपको बता दूँगा। तो आप ना एक काम करो, आप एक एप्लीकेशन लिख दो। एप्लीकेशन में क्या होगा कि हाँ, मैं इस मतलब आपको जैसे आपको एक तरह से आपको एप्लीकेशन इस टाइम तक आपको लिखनी आनी चाहिए कि आपको एप्लीकेशन में क्या लिखना होगा। स्टार्टिंग में वही होता है कि डियर द प्रिंसिपल, फिर जौन सा भी कॉलेज है, फिर उसका एड्रेस, फिर डेट, सब्जेक्ट एंड देन स्टार्ट विद सर। देन उसके उसकी जस्ट नेक्स्ट लाइन में आप अपना लिखो कि आप डीओएसएल से हो, मेरा नाम ये है और मतलब मैं यहाँ मतलब डीओएसएल से हूँ और मेरे को इतने मार्क्स सिक्योर हो गए फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर का भी रिजल्ट आया नहीं है, बट अगर मतलब कोई भी सीट हुए या कोई भी माइग्रेशन प्रोसेस का हुए तो आप मेरे को बता दीजिएगा। ये सारा मैंने प्रोसेस वहाँ पर एप्लीकेशन में लिख के वहाँ पर सबमिट कर दी बस। अब वो एप्लीकेशन का, और एप्लीकेशन मतलब मैंने सबमिट करी अपनी मार्कशीट के साथ, जो कि सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट थी, उसमें सेकंड सेमेस्टर का कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने सिर्फ ऐसे ही सबमिट कर दी। ऐसे ही मैं बारिश का टाइम था उस टाइम पे, तो ऐसे ही मैं इधर-उधर अपना घूमे जा रही हूँ, 3-4 कॉलेजेस कर लिए। और वहाँ के ना जैसे भी आप किसी से भी फैकल्टी मेंबर हो चाहे कोई भी होएगा ना, तो आप किसी से भी बात करोगे तो वो अच्छे से आपको डील नहीं करेंगे। आपको ज़बरदस्ती अपने आप से ही बोलना है कि ना आपको ये आपको ये चीज़ हमको ये चीज़ चाहिए, तो आपको ये चीज़ कैसे हम करें ये वो। तो आपकी वो हेल्प करेंगे, बट आपको एफर्ट कुछ ज़्यादा ही उनको बोलना पड़ेगा, आपको कन्वर्सेशन में ज़्यादा ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और वहाँ पर जाके इफ यू से
इफ यू से लाइक कि हाँ ठीक है, ओके फाइन, ऐसे कर करके आपका काम नहीं हो पाएगा। तो मैं वही कह रही, और मेरे को सारी जगह से यही सुनने को मिल रहा था कि बेटा अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का ही रिजल्ट आया है, सेकंड सेमेस्टर का नहीं आया है। तो आप सेकंड सेमेस्टर में क्या ही मतलब अभी नहीं हो सकता जब तक आपका फुल मतलब सेमेस्टर का मतलब पूरे ईयर का रिजल्ट नहीं आता। तो मेरे को इस चीज को सुन के बहुत ज्यादा डिप्रेशन, लाइक डिप्रेशन तो नहीं कह सकते, मतलब सैडनेस बहुत ज्यादा हो गई थी। तो आई जस्ट वेंट फॉर द नेक्स्ट सोल्यूशन। मैं अपना यूट्यूब पे अपना देखे जा रही हूँ, सब यही सेम चीज बोल रहे हैं कि हाँ आपका फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का दोनों का होना चाहिए, किसी में बैक नहीं होनी चाहिए, और टाइमली रिजल्ट आना चाहिए, और माइग्रेशन प्रोसेस की जो डेडलाइन है, जो ड्यू की फैकल्टी जो पीछे से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो टीम है वो जो डेट निकालती है उससे पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए, और आपका उसका जो माइग्रेशन प्रोसेस है वो भी उस डेट से पहले हो जाना चाहिए कंप्लीट। तो ये चीज़ सब बंदा बोल रहे हैं, और कई लोग बोल रहे हैं कि ड्यूएसएल से रेगुलर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये चीज़ मैंने ये सर्च करी, फिर मेरे को एक चीज़ पता चली, दैट इज कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट। अब ये कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट was the worst ever decision which was made by me during my migration process. What do you mean by confidential result? Confidential result is a result जिसमें आपको क्या होता है कि आपका जो जैसे हमने अपना जो रिजल्ट है उसको पहले मांगने की कोशिश करी कि लाइक आपका पहले रिजल्ट आ जाए डिक्लेयर, जैसे आपकी डिक्लेयर अगर बहुत लेट होने रिजल्ट तो आपको उसी टाइम रिजल्ट कुछ एक हफ्तों में, एक दो हफ्तों में ही मिल जाए, क्योंकि उस टाइम मेरा लाइक बहुत टाइम था सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आने में, क्योंकि मैंने अभी अभी तो पेपर ही दिए थे और एक महीना ही हुआ था ये ऐसे ट्रांसफर का घूमते घूमते। तो ये चीज़ हुई थी, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी होगी, और ना अगर आपने पेशेंस नहीं रखी और आपने डेडिकेशन अपनी छोड़ दी तो आपका माइग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या हुआ, ये चीज़ मेरे साथ हुई पूरा का पूरा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट क्या होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। ओके, सो अगर मैं अब आपको अपनी ये कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट की एक तरह से शीट दिखा रही हूँ जो मैंने पेमेंट करी थी ड्यू के वहाँ पर जाके। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि ये ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है, और वहाँ पर एक साइट मतलब जैसे ये चीज़ ना मेरे को भी नहीं पता था, ये तो वहाँ पर मैंने पूछा कि कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट कैसे निकालते हैं, तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया ड्यू एसओएल जाके। तो फिर ड्यू एसओएल की भी ना दो बिल्डिंग है, एक तो जो वहाँ पर ड्यू एसओएल जहाँ पर सारे बच्चे जाते हो एक होती है, दूसरी वाली बिल्डिंग जो कि आप किसी भी ऑटो वाले को बोलोगे तो वो आपको दूसरी वाली बिल्डिंग पहुंचा देगा। तो उसमें बस ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के लिए 1000 रुपए देने होते हैं। 1000 रुपए यहाँ पर जैसे दे रखे हैं, ये तो एक जैसे मैंने अलग अलग पेमेंट कर दी थी, बट हमको एक ही में 1000 रुपए की पेमेंट करनी होती है। तो उसमें क्या होता है कि कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट, अब ये जो मैंने कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट ये सब मैंने मतलब करा ना, तो इसमें मेरे इतने चक्कर लगे ड्यू यूनिवर्सिटी के, मतलब बार बार विश्वविद्यालय जाके मेरे को बार बार यूनिवर्सिटी में बात करनी पड़ी, और वहां पर कोई सुनता भी नहीं है। अगर मैं वहां पर एक तो आपको ड्यू, अगर आप ड्यू जा रहे हो यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो आपको स्पेशली आपको मॉर्निंग में ही जाना पड़ेगा। मॉर्निंग मीन्स 8 to 10 AM के अराउंड, 8 to 10 11 AM। बट अगर आप उसके बाद जाओगे तो उनका फिर मेरे को एग्जैक्ट टाइमिंग्स अभी याद नहीं है, बट यही मॉर्निंग में ही अगर आप जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आप जैसे आप सोच रहे हो कि हाँ 2-3 बजे तक मतलब यूनिवर्सिटी खुली होती है, तो आपका आराम से काम हो जाएगा। बट आपका काम क्या, आपका तो वो सुनेगी भी नहीं, तो आपको मॉर्निंग में ही जाना चाहिए, और वहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी सिर्फ रोड पे ही है, वो भी आपके रिस्क पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखना कि मेट्रो पे जाना है कि कैसे जाना है। तो जब मैं वहां पर गई तो वहां पर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ रही, क्योंकि अब बिल्कुल नया बंदा वहां पर गया है, लाइन में लगा है, तो वो लाइन में एक तो काउंटर, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे काउंटर्स विंडो होती है, तो वहां पर आपको देखना पड़ता है कि कौन सी काउंटर विंडो पे आपकी सोल्यूशन मिल जाएगा, और उनको एक्सप्लेन करना एक छोटी सी विंडो में वहां से, तो
थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आपको बी वेरी प्रिसाइज विद योर वर्ड्स कि आपको उनको कैसे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट मुश्किल से मिलता है अपना एक्सप्लेन करने में, और वहां पर वो एक्सप्लेन करो भी दो फिर भी उनको कई बार समझ नहीं आता, तो वेरी पेशेंटली वेरी क्लियरली यू हैव टू एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम टू देम। तो मैंने वहां पर उनको बोला कि कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट मेरे को चाहिए। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आपने जो भी पेमेंट करी है, जैसे कि ये वाली पेमेंट जो है ये, और कुछ एक और डॉक्यूमेंट्स वो आपको बता देंगे, जैसे कि एक आपका ये स्लिप चाहिए होगी, एक फॉर्म होगा जो कि आपको वहां से ही मिलेगा, और यूनिवर्सिटी के वहां अंदर जाके मीन्स कि जैसे विंडो पे तो आपकी बात होगी, वो आपको एक स्लिप बना के दे देंगे अगर उनको अंदर भेजना होगा, अगर उनको क्लैरिटी नहीं है, उनको नहीं समझ आ रहा, बट आपकी प्रॉब्लम उनको समझ आ गई, बट आपका सोल्यूशन मतलब बिल्डिंग के अंदर जाके होगा, तो वो आपको विंडो से ही मतलब एक स्लिप बना के दे देंगे। फिर आपका जो भी आपका कोर्स के अकॉर्डिंग जो भी डिपार्टमेंट है, वो आपको वहां पर बिल्डिंग के जैसे विंडो के यहाँ से निकल के थोड़ा सा आगे चल के उसी बिल्डिंग के अंदर ही सिक्योरिटी, वहां पर एक गेट होगा, वहां पर सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है। तो सिक्योरिटी वाले को वो स्लिप दोगे तो वो आपको बताएगा कि आपको फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे जाना है, ये वाले बंदे को कांटेक्ट करना है इस नाम के। तो आप अंदर जाओगे, फिर वहां पर अपनी प्रॉब्लम बताओगे उनको। तो मैंने अपना बताया कि मेरे को कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट चाहिए, जस्ट बिकॉज कि मेरा रिजल्ट आ जाए और मेरी माइग्रेशन की जो डेट है उसी के बीच में मेरा माइग्रेशन पॉसिबल हो जाए। तो ये चीज हुई। तो मैं वहां पर गई, वहां पर मैंने उनको स्लिप दी, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि आप ऊपर जाओ सेकंड फ्लोर पे, वहां पर आपका डिपार्टमेंट का रूम है, तब वहां पर बात करो। तो बात करने वहां पर भी जाके मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम से मिल जाए, आपको पूछना पड़ेगा कि ये पर्सन जो भी मिस्टर या सर, आप ये वाले नाम के कौन कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, या कहीं लंच पे तो नहीं गए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कभी भी यूनिवर्सिटी जाना है तो आपको यूनिवर्सिटी में ये वाला काम आपको सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में ही करना पड़ेगा, मतलब 8 to लाइक 11 या 12 o'clock के बीच बीच तक आपको वहां पर पहुंच के अपनी प्रॉब्लम उनको बतानी चाहिए। इट इज वेरी प्रेफरेबल कि आप मॉर्निंग में ही, अर्ली मॉर्निंग ही जाओ। अर्ली मॉर्निंग मतलब इतना जितना मैंने आपको टाइम बताया। तो मैंने वहां पर बताया तो उन्होंने मेरे को ठीक है, उन्होंने मेरे से सारे डॉक्यूमेंट ले लिए और उन्होंने बोला कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये चीज उन्होंने मेरे को बोली। और जैसे मतलब हो गया उसमें स्लिप में भी अगर आप देखोगे तो स्लिप में भी आपकी जैसे जो भी डेट है वो आपका इतना टाइम नहीं लगाएगा कि 1-2 हफ्ते में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब 2 से 3 हफ्ते हो गए अभी, मतलब ऐसे सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट ऑफिशियली भी ड्यू, एसओएल का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ था। बट जैसे क्या हुआ कि अब मैंने तो करा है, तो अब वो मेरा क्यों नहीं आ रहा कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट। तो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट पे मैंने वहां पर नहीं मेरा आया, 2-3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, तो 4 हफ्ते बाद भी नहीं आया, तो मैं वापस गई। तो वापस उनसे मैंने बात करी तो वो मेरे को कहते हैं विंडो वाले ऐसा नहीं है कि आपको वो डायरेक्टली बिल्डिंग के अंदर ही भेज देंगे, आपको बार बार सिर्फ और सिर्फ अपनी इंक्वायरी लेके विंडो पे ही जाना पड़ेगा। तो विंडो पे भी अब जब मैं वहां पर गई तो मतलब वो विंडो ये वाली नहीं कि ड्यू एसओएल वाली, ड्यू एसओएल की जो दूसरी, मतलब जैसे ड्यू एसओएल का एक डिपार्टमेंट है, बट आपको दूसरी बिल्डिंग जो है वहां वाली विंडो की बात कर रही है, ड्यू एसओएल की विंडो की नहीं। ड्यू एसओएल में आपका कोई काम नहीं होगा जब तक आपका माइग्रेशन प्रोसेस, आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। तो आपका वहां पर कोई काम नहीं है, दूसरी वाली जो बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी की, वहां पर ही जाना पड़ेगा। और वहां की विंडो पे जब मैंने वापस अपनी बताया कि कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के लिए मैंने अप्लाई करा था बट आया नहीं रिजल्ट, तो उन्होंने मेरे को बोला अच्छा नहीं आया। तो फिर उन्होंने पहले तो मेरी बात सुनी ही नहीं, उनको समझ ही नहीं आई। फिर उसके बाद सेकंड टाइम मैंने वापस समझाई तो वो कहते आ जाएगा आ जाएगा, आप अभी वेट करो वेट करो। तो उसके बाद फिर ठीक है, मैं वापस घर चली गई। मेरा घर भी वहां से ऑलमोस्ट अप्रोक्स 2 आवर्स दूर है वहां से, तो मेरे को बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ी। देन उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे ही मतलब मैंने ये चीज कर दी, फिर मैं उसके बाद तीसरी बार गई वहां पर यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा आपको अभी तक नहीं आएगी, ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो आपको क्या हुआ कि आपको वहां पर जाके, मेरे को वापस उन्होंने स्लिप दी और मैं वापस अंदर गई। और अंदर जाके उन्होंने मेरे को बोला अच्छा कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट, बेटा आपका कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट
नहीं आता ऐसे, मतलब ऐसे मतलब नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट की तो डेट ही निकल गई है, जबकि हमने अप्लाई डेट के अंदर ही करा था और रिजल्ट भी डेट के पहले ही आ जाना चाहिए था। उसके बाद भी उनका कोई भी ऐसा नहीं आया कि कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट डेट के अंदर अंदर मैंने अप्लाई करा और भी डेट के अंदर अंदर जाना चाहिए था, जब ऑलरेडी मतलब एक्सपायर हो गई। मतलब मैं वेट करते करते ही एक्सपायर हो गई और उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया कि आपका मतलब नहीं आ सकता या आ सकता, कुछ भी नहीं पता चला। फिर मतलब मैं तो बिल्कुल ऐसे हो गई कि वो ये क्या हुआ मेरे साथ। तो फिर उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा बेकार मतलब ये चीज करी कि मैंने कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट लेने की कोशिश करी। किसी को भी मैं प्रेफर नहीं करूंगी कि आप कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट लो, क्योंकि इट्स नॉट मेंट फॉर यू गाइस। मतलब कि आपका रिजल्ट पहले आ जाए। ये जो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट है ये सब थर्ड ईयर वालों के लिए होता है कि अगर उनको किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो उनको रिजल्ट जल्दी चाहिए, तो वो तब वो ये चीज कर सकते हैं। और बहुत कम बच्चे इस ऑप्शन के लिए जाते हैं। मुझे नहीं पता था कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट का कि हाँ मतलब जब मेरे को तो बस लगा था कि हाँ जल्दी आ जाएगा मेरा रिजल्ट और मतलब जैसे मेरा जल्दी माइग्रेशन हो जाएगा। तो ये चीज हुई। आई वॉज लाइक व्हाट यार, शिट, मेरा मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरे पैसे वेस्ट हो गए। और इसमें ना ये भी लिखा है कि आपकी फीस रिटर्न नहीं होगी किसी भी केस में। तो ये चीज़, और मैंने इतना ट्रैवल करा, मैंने इतने ट्रैवल में इतने सारे पैसे मैंने लगा दिए, इतना टाइम वेस्ट हुआ, इतने हेक्टिक प्रोसेस की बार-बार। अंदर ही यूनिवर्सिटी के प्रिंटर है, तो प्रिंट आउट वाला है शॉप, तो वहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही घूमे जा रही हूँ, इतना पैदल चलना पड़ा ना मेरे को। अंदर यूनिवर्सिटी गई, ऊपर सीढ़ियाँ, नीचे ये वो, ये चीज़ हमने करा और एकदम से आई वाज़ लाइक इतनी ज़्यादा मेहनत करी और कोई रिज़ल्ट नहीं। फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है, अगर आपने अब ये चीज़ होया तो फिर वो मेरे को पहले नहीं बोलते थे ये चीज़। जब मैंने वहाँ पर उनसे बात करी ना, तो पहले नहीं उन्होंने ये चीज़ बोली कि बेटा सेकंड सेमेस्टर का ऐसा तो नहीं होता, ये मतलब प्रोसेस सिर्फ़ और सिर्फ़ थर्ड ईयर के लिए है। आई न्यू थर्ड ईयर के लिए है। बट उन्होंने मेरे को मतलब उस टाइम नहीं बोला। मेरे को लगा कि चलो एक्सेप्ट कर लिया होगा कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट निकालने के लिए। तो फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बेटा, आपकी फीस, ऐसा कभी मैंने सीन देखा ही नहीं, बट अगर आप चाहते हो तो आपकी फीस रिटर्न हो सकती है। अब वो फीस रिटर्न के लिए उन्होंने मुझसे एक फॉर्म भरवाया। बाय द वे ये फॉर्म था जो मेरे को कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के लिए मैंने फिल करा था, वहां पर उन्होंने ही मुझे दिया था। तो दिस इज जस्ट लाइक कि आपको रेफरेंस पता चल जाए कि कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट का ये क्या है, मतलब कैसा फॉर्म फिलअप करना होता है। अच्छा, एक और चीज़ थी कि ना आपका जो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट होता है कि वो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। वो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट आपके लाइक आपका नहीं जाता, बट जिस आप यूनिवर्सिटी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी जहाँ पर भी आप अप्लाई कर रहे हो वहां पर डायरेक्ट जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। और वो सील पैक्ड होता है। और जो रिजल्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ वही यूनिवर्सिटी या वही इंस्टीट्यूशन ही देख सकता है जिसके लिए आपने अप्लाई करा है। अब तो और ये कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट भी करने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक फॉर्म फिल करना और पेमेंट करनी है। कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के लिए भी आपको लाइक क्या करना होगा, आपको जिस भी इंस्टीट्यूट में, मतलब जो मेरे को रेगुलर कॉलेज चाहिए था जहाँ पर मैंने बात करी थी, मतलब मैंने बात आपको बताया ना कि मैं 3-4 कॉलेजेस, 5 कॉलेजेस, 6 कॉलेजेस ऐसे घूमे जा रही हूँ। तो वहां पर जाके जिनसे मैंने थोड़ी सी बात करी थी, उनको ऐसे लगा था कि अगर आपका रिजल्ट टाइम पे आ गया तो वी विल गिव यू द सीट। तो उस वाले कॉलेज ने क्या करा कि मेरी रिक्वेस्ट पे, इट इट वाज लाइक मिरेकल कि ना, हाँ उन्होंने मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे उन्होंने कर दिया। नहीं तो ये लोग काम नहीं करते हैं। उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखवानी होती है कि लाइक एक उनसे एप्लीकेशन लिखवानी होती है कि हाँ वो चीज़ ये डिमांड कर रहे हैं। तो मैं आपको वो लाइक आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देती हूँ कि क्या-क्या कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के लिए चाहिए होते हैं। हाँ जी, तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, मैंने टिक कर रखे हैं। स्कैन्ड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड एंड साइन्ड प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म आपको अभी दिखाया था। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, जो भी मैंने अभी आपको, मेरी जो मार्कशीट थी वो। और फिर उसके बाद एडमिट कार्ड भी देना होता है जो आपने लास्ट एग्जामिनेशन दिया होता है जिस भी सेमेस्टर का। और उसके बाद फिर एक कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट की जो मैंने हमने पेमेंट कर रखी है, जो मैंने अभी आपको ऑनलाइन वाली दिखाई थी वो एक स्लिप। और जिस भी मैंने आपको बोला था ना ऑफर लेटर, इन्होंने लिख रखा है ऑफर लेटर, ये रहा। सॉरी सॉरी सॉरी।
ऑफर लेटर ये चीज़ इन्होंने लिख रखी है, ये चीज़ भी आपको फिल करनी होती है। तो ये चीज़ भी आपको मतलब ऑफर लेटर वही है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में या जिस भी आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो उधर से आपको एक फॉर्म मतलब लाना पड़ेगा। मतलब आपको एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स एक बनवाना पड़ेगा कि जिसमें आप लिखोगे कि आपका कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट ये वाली इंस्टीट्यूशन मांग रही है कि अगर आपको ट्रांसफर करना है तो ये इंस्टीट्यूशन डिमांड कर रही है कि हाँ आपका ये दे दे कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट ताकि आपका एडमिशन यहाँ पर हो सके। और एक और यहाँ पर था कि एडिशनल 500 फीस जो आपकी ईमेल पे मतलब आपको बताएगा कि आपका कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट कि पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा उस वाले इसमें। तो इस मतलब मैं अगर कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट का इन कंक्लूजन कहूँ तो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट में आपको जो ये ए से लेकर एफ तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स है ये चीजें आपको देनी पड़ती है वहां पर। और ऑफर लेटर जिस भी आप कॉलेज में अप्लाई करोगे वहां पर से एक ऑफर लेटर। वैसे तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा कॉलेज वाला, कोई भी कॉलेज वाला हेल्प नहीं करेगा जब तक आपकी अप्रोच नहीं है। बट कुछ एक कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपकी हेल्प जेन्युइनली कर देते हैं अगर आप थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे होते हो कि ना हाँ आपको चाहिए ही चाहिए। तो कुछ बहुत रेयर चांसेस होता है, आपका लक बाय चांस होता है कि आपकी वो कॉलेज हेल्प कर दे कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट लेने के लिए अगर आप DOSL से माइग्रेशन करवाना चाहते हो रेगुलर में। बाकी अगर आप नॉर्मली कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो अगर आपको कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट चाहिए तो वो आपको जेन्युइनली मिल ही जाता है। नॉर्मली आपके कॉलेज वाले आपको बना के दे देते हैं एक स्लिप, मतलब एक डॉक्यूमेंट ऐसे एप्लीकेशन से लिख देते हैं टाइप टाइप करके। और वो आपको बस सबमिट करनी होती है। दैट्स द वेरी सिंपल प्रोसेस और ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ देने होते हैं वहां पर। बट ये चीजें थी। अब मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि उसके बाद जब मेरे को वहाँ पर वापस लेना पड़ा तो उसके लिए भी अलग डॉक्यूमेंट्स वो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। बट कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट इन शॉर्ट फॉर मी वाज अ नो ऑप्शन फॉर गेटिंग दिस माइग्रेशन प्रोसेस डन बिकॉज अगर आप कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के लिए जाओगे तो आपके ही पैसे आपका ही टाइम आपके एफर्ट्स वेस्ट होने हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ। और वहां पर जाके आपका माइग्रेशन के लिए ये कुछ भी हेल्प नहीं करेगा कि कहीं आप सोचो कि कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट है जल्दी आ जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होना। डोंट गो फॉर दिस ऑप्शन। दिस वॉज अ वेरी हेक्टिक एंड अ वेरी irritating and a very dumb idea to go for this confidential result for my migration process because I was just a first year student. I didn't know कि हाँ कि ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। I was just fixed in my mind कि ना हाँ मेरे को बस माइग्रेशन करवाना है, माइग्रेशन करवाना है, माइग्रेशन करवाना है, बस यही चीज थी मेरी माइंड में। गाइस आई थिंक ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा ही लंबी हो गई है। So we will be meeting for the part 2 of the video ताकि आपको मैं एग्जैक्ट मेन प्रोसेस बता सकूं कि मेरा आगे की जर्नी का क्या था। बट ये जो प्रोसेस था ये सिर्फ और सिर्फ लाइक मैंने सिर्फ आपको बताया कि मेरी क्या अप्रोच थी कि हाँ अगर कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट मिल जाएगा तो फटाफट से माइग्रेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है तो आप भी मत करना, मेरी मिस्टेक से आप लर्न कर लो। ये चीज़ सिर्फ ये वाली वीडियो सिर्फ इसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड थी। बाकी I will tell you the main and the very specific process of the migration in my part 2 video. So let's end this video. Again, thank you so much for listening me.